Hello everyone. So today I'm going to take up a new topic of ISC class 12 syllabus, and that is Macbeth Act 3 Scene 4. So basically the scene is set in the banquet hall of Macbeth's palace at Forres. The banquet to which Banquo has been invited is in progress. अभी चल ही रहा था. Macbeth is told that his plan for Banquo is partially executed and his fear still remains. Why? Because Fleance बच जाता है. As the banquet is in progress, the ghost of Banquo, visible only to Macbeth, comes and it seats itself on the vacant seat. Macbeth stares at it in horror, and the guests are confused, perplexed at his reaction. Lady Macbeth saves the situation by explaining her guests that Macbeth suffers from such nervous disorder from childhood. And then she suddenly requests the guests to leave. Jao karke. He's not well. Macbeth on his part decides to consult the weird sisters once again in this scene. So let's begin with line by line explanation of the chapter. Scene 4, a hall in the palace. So this scene is set at Macbeth's castle. That means जो पहले Duncan का castle था, which has been now given to Macbeth. A banquet prepared. So there is a huge table जहाँ पे पूरा banquet arranged है, खाने का सब सामान arranged है, जो कि Macbeth ने organize कराया हुआ था. Enter Macbeth as king. तो Macbeth enter करते हैं. He is now the king. Lady Macbeth as queen. So Lady Macbeth जो है वो इस समय कौन है? Queen है. So she has actually एक तरह से देखा जाए fulfilled her desire, her ambition. Ross, Lennox, lords and attendants. So सब लोग वहाँ पे खड़े हैं. Macbeth. You know your own degrees. Degrees मतलब ranks. तो आप सबको तो अपनी अपनी ranks पता है ना, तो उसके हिसाब से सब लोग यहाँ पे बैठेंगे. Sit down. At first and last, the hearty welcome. So all the officials are requested कि सब लोग अपने अपने रैंक्स के हिसाब से, अपने अपने पोजीशन के हिसाब से, फर्स्ट जो सबसे मतलब बड़ी रैंक पे है वो मेरे बगल में बैठेगा, फिर थोड़ी दूर 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 करते हुए ऐसे सब लोग अपनी रैंक के हिसाब से बैठ जाएं. A hearty welcome. Every one of you are welcomed with all my heart. मैं सबको यहाँ पे बहुत ही दिल से वेलकम करना चाहता हूँ. लॉर्ड्स सिट. सारे लॉर्ड्स बैठ जाते हैं. लॉर्ड्स थैंक यू योर मैजेस्टी. थैंक यू किंग. योर मैजेस्टी. थैंक यू किंग. Macbeth. Ourselves will mingle with society and play the humble host. See, now since I am the king, but at present I will sit with all of you and mix with the society. इस समय मैं किंग की तरह नहीं एक्ट करूँगा. मैं आप लोग के साथ बैठूँगा, आप लोग के साथ ही पार्टिसिपेट करूँगा इस फीस्ट में. Our hostess keeps her state, but in best time we will require her welcome. So Lady Macbeth को वो बोल रहा है, our hostess वो अपनी चेयर पे बैठी हुई हैं, but जब suitable time आएगा she will also come over here when we'll require her welcome. जब हमें उनकी ज़रूरत होगी तो हम उनको नीचे बुलाएंगे. अभी वो ऊपर बैठी हुई हैं. Lady Macbeth, pronounce it for me on my behalf. आप ये सारे लोगों को बोल दीजिए. To all our friends, from my heart speaks they are welcome. मैं हार्ट से उन सबको वेलकम करना चाहती हूँ. आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे बिहाफ पे सबसे बोल दीजिए. Macbeth, see they countered the means you with their hearts thank. just the way आपने उनको हार्टी थैंक्स दिया है, आपने उनको हार्टी वेलकम दिया है, आपने उनको वेलकम किया है विथ ऑल योर हार्ट इन द सिमिलर मैनर, वो भी आपको उतनी ही खुशी दिल से आपको थैंक्स बोल रहे हैं. एंटर फर्स्ट मर्डरर. अब यहाँ पे फर्स्ट मर्डरर एंटर कर चुका है. बी लार्ज इन mirth. mirth मतलब हैप्पीनेस. सो बी एवरी वन बी चेयरफुल. सब लोग खुशी करें, सब लोग इन्जॉय करें, सब लोग मैक्सिमम वे में जितना इन्जॉय कर सकते हैं करें. And in we will drink a measure the table round. And in मतलब soon, very soon we will drink a large goblet of wine. बड़ा सा goblet of wine हम लोग पियेंगे around the table. पूरे में आने वाला है. उसने मर्डर को देख लिया था तो ये धीरे से डोर के पास जाता है. देयर इज ब्लड अपॉन दाई फेस. अरे तुम्हारे मुंह पे सब खून लगा हुआ है. मर्डर से बोल रहा है. मर्डर, इट इज़ बैंकोस देन. अच्छा, तो फिर ये पक्का बैंको का होगा, बिकॉज मैंने ही बैंको को असॉल्ट किया है, मैंने उसको मारा है. बैंको ने तो मुझे हर्ट नहीं किया, तो ये पक्का खून जो है वो बैंको का होगा. Macbeth, it is better thee without than he within. Is he dispatched? So it is better that
बैंको का खून तुम्हारी बॉडी पे है, ना कि उसकी खुद की बॉडी में है. इट इज़ बेटर टू हैव बैंकोज ब्लड ऑन योर फेस दैन हिज बॉडी. वो उसकी बॉडी में नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत सुकून में हूँ कि बैंको की बॉडी में अब उसका खून नहीं है. इज ही डिस्पैच्ड, इज ही डेड, मार दिया उसको. मर्डर, माई लॉर्ड, हिज थ्रोट इज कट, दैट आई डिड फॉर हिम. यस, मैंने उसका थ्रोट कट कर दिया है, मैंने ये उसके लिए किया है कि मैंने उसका थ्रोट कट कर दिया है. मैकबेथ, दाउ आर द बेस्ट ऑफ द कट थ्रोट्स. ओ वाओ, तुम तो बेस्ट हो कट थ्रोट्स में. थ्रोट्स काटने में तुम्हारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तुम तो बेस्ट हो. येट ही इज़ गुड दैट डिड द लाइक फॉर फ्लियांस. लेकिन वो बंदा और भी अच्छा होगा जो कि सेम काम फ्लियांस के लिए भी किया होगा. दैट मीन्स अगर फ्लियांस का भी गला काटा होगा, दाउ आर्ट नॉन पेरेल, दैट मीन्स देयर विल बी नो मैच. अगर तुमने फ्लियांस का भी गला काट दिया होगा तो तुम नॉन पैरेलल हो, नॉन इक्वल हो, तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है. अगर तुमने जिस तरह से तुमने बैंको का गला काटा, अगर तुमने फ्लियांस का भी गला काट दिया है तो बस तुम्हारा तो कोई जोड़ ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. मर्डर, मोस्ट रॉयल सर, फ्लियांस इज एस्केप्ड. क्या बताऊँ सर, फ्लियांस तो भाग गया. मैकबेथ, देन कम्स माई फिट अगेन. ओ माई गॉड, फिट हियर मीन्स फियर. हे भगवान, फिर तो मुझे और डर लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली में बैंको से तो उसको खतरा था ही नहीं, उसको खतरा तो फ्लियांस से ही था. हे भगवान, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है, मुझे तो फिर डर लग रहा है. आई हैड एल्स बीन परफेक्ट होल एज द मार्बल. अगर तुमने फ्लियांस को भी मार दिया होता तब मैं बिल्कुल फर्म रहता, जैसे कि एक मार्बल होता है बिल्कुल सॉलिड. अगर फ्लियांस को मार दिया होता तो मेरे कॉन्फिडेंस बिल्कुल सॉलिड होता, मार्बल की तरह, मुझे बिल्कुल किसी से डर ही नहीं लगता. फाउंडेड एज रॉक, स्टेबल एज रॉक. जैसे रॉक बिल्कुल स्टेबल होता है, बिल्कुल मैं वैसे ही स्टेबल होता, मुझे किसी से डर ही नहीं लगता. as broad and general as the casting air, as free as the surrounding air. अगर फ्लियांस मर गया होता तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल सराउंडिंग एयर की तरह फ्री होता, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मेरा सारा टेंशन खत्म होता. बट नाउ आई एम केबिन. अरे यार, लेकिन अब मैं परेशान हूँ, अब मैं लॉक्ड हूँ. केबिन मीन्स लॉक्ड, अब मैं शट अप हो चुका हूँ. क्रिप्ड, कन्फाइंड एंड बाउंड. अब मैं क्रिप्ड हूँ, फंसा हुआ हूँ, कन्फाइंड हूँ, इम्प्रिजनड हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ. इन टू सॉसी डाउट्स, डिस्ट्रैक्टिंग डाउट्स. अब मेरे दिमाग में ना इतने डाउटफुल थाट्स आ रहे हैं, मैं उसकी कैद में हो गया हूँ. हे भगवान, ये क्या है. अब मैं हर समय अपने थाट्स के बीच में मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही सब चलता रहेगा. बट बैंको सेफ, बट हैव यू सेफली डिस्पोज्ड ऑफ बैंको. बैंको को ठिकाने पहुँचा दिया है, लगा दिया है उसको. Murderer, my good lord, safe in the ditches he bides. Yes, safely disposed in the ditches. गड्ढे में हमने उसको safely dispose of कर दिया है. With 20 trenched gashes on his head. Trenched means deep. Yes, उसको हमने deep wounds दिए हैं उसके सर पे. Almost 20 deep wounds उसको हमने सर में दिए हैं. The least a death to nature. See, one of them is sufficient for any human to die. एक ही सफिशिएंट होता है किसी को भी मारने के लिए. उसको तो हमने 20 घाव दिए हैं, तो उसका बचना तो नामुमकिन है, मतलब वो मर ही चुका है और किसी भी हाल में वो नहीं जिंदा हो सकता है. मैकबेथ, थैंक्स फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर किलिंग बैंको. देयर द ग्रोन सर्पेंट लाइज. एटलीस्ट जो बिग स्नेक है, बिग सर्पेंट है, वो तो मरा, वो तो वहाँ पे पड़ा है. द वर्म दैट फ्लेड हैथ नेचर that in time will venom breed. जो small snake है, that means he is talking about फ्लियांस, वो अभी मेरा पोटेंशियल डेंजर नहीं है, अभी वो बहुत छोटा है, अभी उसके अंदर पॉइजन ग्रो होने में टाइम लगेगा. अभी फॉर द टाइम बीइंग वो मुझे किसी भी तरह से हार्म नहीं कर सकता. ही इज़ हार्मलेस, मेरे लिए अभी वो हार्मलेस है, मुझे किसी भी तरह से वो हार्म अभी नहीं करेगा, बहुत छोटा है अभी. नो टीथ फॉर द प्रेजेंट. तो सर्पेंट जो हैं, जो स्नेक हैं, वो अपने दांतों से सांप जो होते हैं वो पॉइजन ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें अभी सांप में दांत नहीं है. दैट मीन्स फ्लियांस इज टू यंग टू हार्म मी एट प्रेजेंट. वो अभी मुझे हार्म नहीं कर पाएगा. गेट दी गॉन, टुमारो वील हियर आवर सेल्व्स अगेन. अभी तुम यहाँ से जाओ, वील मीट टुमारो, फिर हम लोग बात करेंगे अगेन. एग्जिट मर्डरर, चला जाता है. लेडी मैकबेथ, माई रॉयल लॉर्ड, यू डू नॉट
गिव द चेयर, यू हैवंट गिवन अ टोस्ट ऑल्सो। आप तो लोग जो आए हैं उनको वेलकम नहीं कर रहे हैं। क्या बात है माय लॉर्ड, आप कहाँ बिजी हैं, आप एंटरटेन तो करिए। कोई आपके, अच्छा मान लो आपके पार्टी में कोई आए, आप अपने फ़ोन में और इधर उधर बिजी हो, वो लोग आ रहे हैं अपने में बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा रूड बिहेवियर माना जाता है। भाई कोई आपके यहाँ आया है, आपको तमीज़ से उनको वेलकम करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। तो लेडी मैकबेथ आगे कहती हैं, क्या हो गया, आप तो ये टोस्ट भी नहीं दिया है, आप कहाँ हैं, यू आर नॉट एंटरटेनिंग द गेस्ट्स। The feast is sold that is not often vouched while it is making. See, the feast, अगर कोई होस्ट जो है वो फॉरगेट कर जाता है अपने जो गेस्ट्स हैं उनको एंटरटेन करने में, उनको कर्टिसी शो करने में, तो ये माना जाता है कि ये जो फीस्ट है वो सोल्ड है। मतलब वो लोग पैसा वेस्ट करके यहाँ पे आए हैं। जो गेस्ट्स आते हैं तो वो लोग अपना टाइम पैसा सब वेस्ट करके आते हैं, तो उनका पैसा सब बर्बाद है अगर उनको अच्छे से वेलकम ना किया जाए। It is a making, it is given with welcome. To feed were best at home, from thence the sauce to meat is ceremony, meeting were bare without it. See, कंपनी जो है, कंपनी किसी का साथ जो होता है वो स्पेशल सॉस की तरह होता है जो आपकी फीस्ट को वर्थ वाइल बनाता है। अगर आप मतलब अगर आप अकेले रहेंगे, आप अपने ही लोगों को वेलकम नहीं करेंगे, तो इससे अच्छा होता वो लोग अपने अपने घर में बैठ के खाना खा लेते हैं। कोई आपके घर में 2 और खाना खाने थोड़ी ना आया है। सो इफ़ ईटिंग वॉज दी ओनली कंसर्न, सिर्फ खाना ही खाने वाली बात होती, दे कुड हैव स्टेड बैक एट होम ऑल्सो, बिकॉज इफ़ समवन इज़ अवे फ्रॉम हिज होम, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा पर्सन जो है, जो होस्ट है, वो उसको वेलकम करेगा। जस्ट लाइक हम कोई नॉर्मल सी, घर में हम लोग सिंपल सी दाल भी खा लेते हैं, लेकिन जब हम होटल में जाते हैं तो उस पर सॉस और टॉपिंग्स और अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वैसे ही अगर कोई आपके घर आ रहा है तो उसको अच्छे से ग्रीट करना चाहिए। मैकबेथ, स्वीट रिमेम्बरेंस, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी, मैं दिमाग से स्लिप हो गया था, थैंक यू। नाउ गुड डाइजेशन वेट ऑन एपेटाइट एंड हेल्थ ऑन बोथ। सो मे, अब वो सबके सामने जाके बोल रहा है, मे गुड डाइजेशन फॉलो ऑल ऑफ योर एपेटाइट एंड मे यू हैव अ गुड हेल्थ, एपेटाइट्स, डाइजेशन एंड हेल्थ, ये सब कुछ आप लोग को मिले। लिनॉक्स, मेस्ट प्लीज योर हाइनेस, सेट सर प्लीज बैठिए, आइए बैठिए। द घोस्ट ऑफ बैंको एंटर्स। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या आता है, घोस्ट जो है बैंको का वो एंटर कर जाता है, बट मज़े की बात यह है कि ये घोस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ को दिख रहा है और किसी को भी विजिबल नहीं है। द घोस्ट ऑफ बैंको एंटर्स एंड सिट्स इन मैकबेथ्स प्लेस। अब आता है और मैकबेथ की कुर्सी पे आके बैठ जाता है। अब मैकबेथ, here had we now a country's honored roof. So here we have all the honored people of our country. जितने भी ऑनरेबल पीपल हैं हमारी कंट्री के, इस समय हमारे सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मुझे बड़ी खुशी है। Were the gracious person of our बैंको present. बस यार बैंको नहीं आया है, काश वो भी आ गया होता। देखो बैंको तो ये मरवा चुका है, लेकिन यहाँ पे सबके मुंह पे कितना मीठा मीठा बोल रहा है, काश यार बस बैंको आ जाता। Who may I rather challenge for unkindness than pity for mischance? See, मैं उसको अक्यूज़ करना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा रूड है, बड़ा बदतमीज़ है, जो लेट से आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई मिसचांस हो गया है, मैं ये मान ही नहीं सकता हूँ। पक्का वो बड़ा बदतमीज़ है जो इतना लेट कर दिया, इतना रूड है कि वो टाइम से आया भी नहीं। रॉस, हिज एब्सेंस सर लेज ब्लेम अपॉन हिज प्रॉमिस। यस सर, वो एब्सेंट है तो इसका मतलब तो यही है कि ही हैज़ फेल्ड इन कीपिंग अप हिज प्रॉमिस, वो अपना प्रॉमिस ही नहीं रख पाया। एब्सेंस से तो यही लग रहा है। प्लीज इट योर हाइनेस टू ग्रेस अस विथ योर रॉयल कंपनी। सर विल यू प्लीज़ सिट डाउन एंड ग्रेस अस विथ योर रॉयल कंपनी। भाई हमारे साथ बैठिए, हमें भी थोड़ा सा खुश होने का मौका दीजिए। सर प्लीज़ हैव अ सीट, बैठिए हमारे साथ। मैकबेथ, द टेबल इज़ फुल। अरे बैठूँ कहाँ, यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है, बिकॉज उसको तो बैंको का घोस्ट दिखाई दे रहा था, बैंको का घोस्ट भी वहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसको कोई वेकेंट सीट नहीं दिख रही थी, तो टेबल तो फुल है। लिनॉक्स, हियर इज़ अ प्लेस रिजर्व्ड सर। सर ये जगह है तो आपके लिए रिजर्व किया हुआ है सर, प्लीज़ कम एंड सिट। मैकबेथ, वेयर, कहाँ? लिनॉक्स, हियर माई गुड लॉर्ड, वॉट इज़ इट दैट मूव्स योर हाइनेस। अभी तक उसने घोस्ट नहीं देखा था, यहाँ पे अब वो मैकबेथ घोस्ट देखता है। जब लिनॉक्स उसे कहते हैं सर यहाँ पे, यहाँ बैठिए ना, तो वो तो खाली स्टूल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है लिनॉक्स, लेकिन मैकबेथ को वहाँ पे घोस्ट दिखाई दे रहा है। मैकबेथ,
विच ऑफ यू हैव डन दिस? सो मैकबेथ इज टेकन अबैक. वहाँ पे उसको घोस्ट ऑफ बैंको दिखाई दे रहा है जो कि पूरा खून से लथपथ है, ऊपर से नीचे तक ही इज ऑल कवर्ड विद ब्लड. सो वो एकदम से हड़बड़ा के कहता है, ये तुम लोग में से किसने किया है? लॉर्ड्स, व्हाट माय लॉर्ड? क्या चीज़ माय लॉर्ड? क्या? मैकबेथ. सो मैकबेथ इज नाउ टॉकिंग टू द घोस्ट. क्या बोल रहे हैं? मैकबेथ, दाउ कैन नॉट से आई डिड इट. घोस्ट से कह रहा है, ही इज टॉकिंग टू द घोस्ट. तुम ये नहीं कह सकते मैंने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने नहीं किया है. नेवर शेक दैट गॉरी लॉक्स एट मी. लॉक्स मतलब हेयर एंड गॉरी मीन्स ब्लड स्टेन. सो ये अपने जो ब्लड स्टेन लॉक्स हैं, ब्लड स्टेन हेयर्स हैं, मेरे पे मत शेक करो. ही इज टेकन अ बैग. उसके सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है. रॉस, जेंटलमैन राइज, हिज हाइनेस इज नॉट वेल. जेंटलमैन, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है, मेरे ख्याल से सर की तबीयत खराब है. लेट्स गेट अप. हम लोग को उठते हैं. लेडी मैकबेथ नाउ शी टेक्स द फ्रंट फुट एंड शी एक्चुअली ट्राइज टू पैसिफाई. सब कुछ नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है. क्या कह रही हैं? सिट वर्दी फ्रेंड्स, माई लॉर्ड इज ऑफन दस. प्लीज़ प्लीज़ सर, डोंट माइंड. वर्दी फ्रेंड्स, प्लीज़ हैव अ सीट. माई लॉर्ड, इस तरह से उनको अक्सर ऐसा हो जाता है. एंड हैड बीन फ्रॉम हिज यूथ. इनफैक्ट अपनी यंग एज से, अपनी यूथ से उनको इस तरह की प्रॉब्लम है. उनको फिट्स आते हैं. प्रे यू कीप सीट, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज कीप सीटेड, बी सीटेड. आप सब लोग बैठे रहिए. द फिट इज़ मोमेंटरली. ये जो फिट है, ये जो झटका लगा है, ये जो बिहेव कर रही है फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए. अपॉन अ थॉट ही विल बी अगेन बी वेल. अगेन ही विल बी फाइन. बस थोड़ी देर के लिए ऐसा है. इन अ मोमेंट ही विल बी एब्सोल्युटली फाइन. इफ मच यू नोट हिम you shall offend him. The more you pay attention to him, जितना आप इन पे ध्यान देंगे, जितना अटेंशन पे करेंगे, और ज़्यादा इनकी कंडीशन वर्स हो जाएगी. तो इन पे ध्यान मत दीजिए. आप लोग अपना खाइए पीजिए, इन पे ध्यान मत दीजिए. एंड एक्सटेंड हिज पैशन एंड दिस फिट विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये काफ़ी देर तक उन पे फिट चलेगा. आप इसको प्लीज़ अवॉइड करिए. प्लीज़ आप लोग खाना खाइए एंड डू नॉट जस्ट लुक एट हिम. और वो असाइड लेके जाती है मैकबेथ से. वो पूछती है, आई यू मैन, ये क्या कर रहे हो तुम? आई यू अ मैन, कैसी हरकतें कर रहे हो ये? मैकबेथ, ए अ बोल्ड वन. यस, मैं मैन हूँ एंड आई एम अ बोल्ड वन. सी, वो इस समय इतना ज़्यादा हैलुसिनेशन में इन्वॉल्व्ड है. वो बैंकों का घोष देख रहा है. वो देख रहा है कि वो सब कुछ भूल चुका है. देखो गिल्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं, कितना वो गिल्ट से भरा हुआ है कि उसको वही पुरानी गलतियाँ, वही पुराने मर्डर्स, वही पुराने क्राइम्स दिख रहे हैं. द डेयर लुक ऑन दैट which might appall the devil. See, I am such kind of a brave man. मैं इतना courageous हूँ that I have the courage to look on a sight which might even shock the devil. devil भी देखना से घबरा जाए. मैं तो वो साइट देख रहा हूँ. तो he is actually talking about Banco right now. लेडी मैकबेथ, ओ प्रॉपर स्टफ. ओ नॉनसेंस यार, क्या बातें कर रहे हो तुम? नॉनसेंस बातें कर रहे हो. This is the very painting of your fear. This is just the imaginary things which you are imagining in your mind because of fear. फर्जी चीज़ें सिर्फ इमेजिन कर रहे हो. डर की वजह से ये सब तुम इमेजिन कर रहे हो. This is the air-drawn dagger which you said led you to Duncan. ये वैसा ही डैगर, जब तुम डंकन को मर्डर करने जा रहे थे, तुम्हें एक हवा में जो डैगर दिख रहा था, जो सब इमेजिनरी था, वैसे ही ये सब भी इमेजिन कर रहे हो. कुछ नहीं है ये. Oh, these flaws and starts, imposter to true fears, would well become the women's story at a winter's fire authorized by her granddam. ग्रैंड इज ग्रैंड मदर. सो ये जो पैनिक अटैक है, ये जो तुम पैनिक अटैक आ रहे हो, ये कंपेयर नहीं किया जा सकता रियल फियर से. ये रियल फियर नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा डर है. ये इमेजिन कर रहे हो, ये असली वाला डर नहीं है. कोई तुम्हें आके मार नहीं रहा है. और ये तुम जो हरकतें कर रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम अ स्टोरी फॉर विमेन टू नरेट व्हेन दे सिट बाय द फायर साइड इन द विंटर्स. जब विंटर्स में लोग बैठ के फर्जी बातें करते हैं तो तुम्हारी कहानियाँ बोलने लगेंगे लोग. शेम ऑन यू, क्या बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो? शेम इटसेल्फ, शर्म करो. ओल्ड वाइफ्स टेल बन जाएंगी ये सब. वाई डू यू मेक सच फेसेस when all's done you look but on a stool. अरे यार क्या कर रहे हो? why are you hallucinating all these things? क्यों कर रहे हो? सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तुम एक खाली स्टूल को देख रहे हो. देखो, लेडी मैकबेथ को ये बात तो समझ में आ गई थी तुरंत ही कि ये जो ये कर रहा है, ये अगेन उसको वैसे ही हैलुसिनेटरी वर्ल्ड में ये चला गया है. लेकिन जो मैकबेथ है, ही इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी. मैकबेथ,
प्रीति सी देयर, बिहोल्ड, ओहो तुम देखो, तुम खुद देखो, तुम्हें वहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, लुक, अरे देखो, हाउ से यू, वाई, व्हाट केयर आई, इफ thou canst not speak to, if charnel houses and our graves must send those that we bury back, our monuments shall be the maw of kites. See, अगर जो हमारी मॉचरीज हैं या हमारी जो ग्रेव्स हैं, पहले टाइम में तो वो कभी अगर हम उनमें कोई गाड़ देते थे, किसी को बरी कर देते थे, उसमें से डेड्स निकल के तो आते नहीं थे. अब क्या हो गया है, अब क्यों वहाँ से डेड्स बाहर निकल के आ रहे हैं. देखो बैंको यहाँ पे बैठा हुआ है. वाई आर दे सेंडिंग बैक देयर डेड्स? टू प्रिवेंट दिस, मेरे ख्याल से इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने डेड्स को बरी ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनको लावारिस काइट्स नोच नोच के खाएं उसके लिए छोड़ देना चाहिए. क्या फ़ायदा उनको बरी करने का जब वहाँ से डेड्स निकल निकल के चले आ रहे हैं. घोस्ट डिसअपियर्स, घोस्ट चला जाता है. लेडी मैकबेथ, व्हाट, क्वाइट अनमैन्ड इन फॉली, अरे यार हैव यू गॉन क्रेजी, क्या यू हैव लॉस्ट योर सेंसेस, व्हाट इज हैज़ योर फूलिशनेस अनर्व्ड, कुछ नॉर्मल हो गए हो, सही हो गए हो क्या. मैकबेथ, इफ़ आई स्टैंड हियर आई सॉ हिम, अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर जितना रियलिटी ये है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उतनी रियलिटी ये है कि मैंने उसको देखा था. लेडी मैकबेथ, फाइव फॉर शेम, शर्म करो, शर्म करो. मैकबेथ, ब्लड हैथ बीन शेड और नाउ, सी ब्लड शेड हुआ है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अभी हुआ है. बिफोर नाउ ऑल्सो ब्लड शेड होते थे, मर्डर्स होते थे. इन द ओल्डन टाइम्स अर ह्यूमन स्टैचर पर्च द जेंटल व्हील. ओल्डन टाइम्स में जब ह्यूमन लॉज जो थे वो इतने ज़्यादा जब ह्यूमन लॉज नहीं बने थे, उससे पहले जो सोसाइटी थी बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थी. ह्यूमन लॉज बनने से बहुत ज़्यादा सोसाइटी नॉर्मलाइज हुई है. सो जब लॉज नहीं बने थे एंड सिंस टू मर्डर्स हैव बीन परफॉर्म्ड, तब से और आज तक मर्डर्स परफॉर्म हुए हैं. बिफोर द लॉज, आफ्टर द लॉज, मर्डर्स तो होते ही आए हैं. टू टेरेबल फॉर द ईयर, इतने टेरेबल थे कि आप सुन भी नहीं सकते, इतने भयानक थे. बहुत ही टेरेबल मर्डर्स परफॉर्म हुए विच यू कैन नॉट इवन हियर ऑल्सो. द टाइम हैज़ बीन दैट व्हेन द ब्रेन्स वर आउट द मैन वुड डाई. लेकिन तब क्या होता था, अगर किसी के ब्रेन पे हर्ट कर दो तो इंसान मर जाता था. दैट वॉज द टाइम व्हेन जो ब्रेन को अगर कोई डैश करता था, कोई हर्ट करता था, तो इंसान वहीं पे मर जाता था. एंड देयर एंड, लेकिन इंसान वहीं पे मर के वहीं पे बात ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद वो जिंदा नहीं होता था. बट नाउ दे राइज अगेन, बट नाउ मर्डर्ड मैन आर राइजिंग अगेन. मर्डर्ड मैन फिर से खड़े हो रहे हैं. बताओ, बैंकों को मरवा दिया, उसके बाद भी वो यहाँ पे आ गया, ये कैसे है. विथ 20 मॉर्टल मर्डर्स ऑन देयर क्राउन्स, विथ 20 डेडली वूंड्स ऑन देयर हेड. ऑलमोस्ट इतने भयानक वूंड्स हैं जिसको बचने का कोई चांस नहीं है, उसके बाद वो बंदा यहाँ चला आया है. एंड पुश अस फ्रॉम आवर स्टूल्स, स्टूल्स मतलब सीट्स, और हमारी सीट्स ऑक्यूपाई कर ली, हमको धक्का दे दिया है, मेरी सीट उसने ले ली. दिस इज़ मोर स्ट्रेंज दैन सच अ मर्डर इज. ये जो घोस्ट है ये और ज़्यादा स्ट्रेंज है दैन एक्चुअल मर्डर. मर्डर उतना स्ट्रेंज नहीं था, ये घोस्ट देख के तो मेरी और ज़्यादा बैंड बज गई है, मुझे और डर लगने लगा है. लेडी मैकबेथ, माई वर्दी लॉर्ड, योर नोबल फ्रेंड्स डू लैक यू. अरे यार ये सब बाद में कर लेना, आपके फ्रेंड्स आपका वेट कर रहे हैं. मैकबेथ, आई डू फॉरगेट, हाँ मैं जा रहा हूँ. डू नॉट म्यूज एट मी माई वर्दी फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट बी शॉक्ड एट माई बिहेवियर. प्लीज़ मेरे बिहेवियर पे शॉक मत होइएगा माई वर्दी फ्रेंड्स. आई हैव अ स्ट्रेंज इन्फॉर्मिटी. इन्फॉर्मिटी मीन्स वीकनेस. मेरे अंदर एक्चुअली में बहुत एक स्ट्रेंज सी वीकनेस है, विच इज़ नथिंग टू दोज दैट नो मी. देखो, दोज पीपल हु नो मी, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनको पता है कि मेरे अंदर ये वीकनेस है. Come, love and heal to or help to all and then I'll sit down. चलिए हम लोग हेल्थ के लिए, लव के लिए, सबके लिए प्रे करते हैं एंड देन हम बैठते हैं. गिव मी सम वाइन, फिल फुल. एक काम करो, मुझे वाइन दे दो, पूरा कप ऊपर तक भर देना. I'll drink to the general joy of the whole table. जनरल जॉय, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबके जॉय के लिए मैं चीयर्स करता हूँ. एंड टू अ डेड फ्रेंड बैंको whom we miss. और हम डियर फ्रेंड बैंको जिसको हम मिस कर रहे हैं उसके लिए भी हम चीयर्स करते हैं. और उसके लिए और जितने लोग यहाँ पे, हम सबके हेल्थ के लिए, सबके गुड विशेस के लिए हम लोग चीयर्स करते हैं. लॉर्ड्स, आर ड्यूटीज़ एंड द प्लेजेस, हम लोग अपनी ड्यूटी, अपने प्लेज टुवर्ड्स आर किंग के लिए भी चीयर करते हैं. री एंटर घोस्ट. मैकबेथ को फिर वो घोस्ट दिखता है बैंको का. मैकबेथ,
आई वॉन्ट, गो अवे, हटो यहाँ से, गेट आउट ऑफ माई साइड, मेरी साइड से हटो. Let the earth hide thee, please. You are not supposed to come here. You should be under the earth. Earth should hide you. Earth तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए, उसको तुम्हें छुपा लेना चाहिए. तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? Thy bones are marrowless. There is no bone marrow in your bones. तुम कैसे बाहर निकल आए? तुम्हारे अंदर तो कुछ है ही नहीं अब. Thy blood is cold. Your blood, cold blood का मतलब मरे हुए होना होता है. तुम्हारा blood cold हो चुका है क्योंकि body cold पड़ जाती है after death. Thou hast no speculations in those eyes which thou dost glare with. You have no sight. तुम कुछ देख थोड़ी ना पा रहे हो, मुझे डरा रहे हो. मैं नहीं डरूंगा तुमसे, मुझे तुमसे डर नहीं लगता. जो तुम जिस आँखों से तुम मुझे घूर रहे हो ना, मुझे पता है उसमें कोई साइट नहीं है. देखो उसकी बैंड बजी हुई है घोष देख के. अब वो फर्जी में अपने आप को कंसोल कर रहा है, मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से. अगेन वो फिट के मूड में आ गया है. सब लोग फिर से शॉक्ड है, ये क्या हो गया मैकबेथ को, ये क्या कर रहा है. लेडी मैकबेथ, थिंक ऑफ दिस गुड पियर्स बट एज अ थिंग ऑफ कस्टम. प्लीज़, ये अक्सर ऐसा हो जाता है, ऐसा इवनिंग्स में अक्सर हमारे साथ अक्रेंस हो जाता है. आप इसको प्लीज़ माइंड मत करें. इट इज़ नो अदर, इट इज़ नथिंग एल्स. बस और कुछ नहीं है. इट ओनली स्पॉइल्स द प्लेजर ऑफ टाइम. बस हमारी इवनिंग रुइन कर रहा है, बर्बाद कर रहा है. ये जो फिट है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. इससे आप घबराइए नहीं, बस हमारी इवनिंग रुइन कर रहा है. मैकबेथ, what man dare, I dare. Again he's talking to the ghost. He is just least not bothered about the people who are sitting next to him. वो सिर्फ घोस्ट से बात कर रहा है. what man dare, I dare. what any man dares to do, I dare to do that. जिसमें कोई भी ह्यूमन जितनी डेयरिंग कर सकता है, मैं उतना डेयरिंग हूँ. अप्रोच दाउ लाइक द ड्रग्ड रशियन बेयर. सी, अगर तुम मेरे पास ड्रग्ड रशियन बेयर की तरह आते हो, बहुत ही रफ होता है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता है. द आर्म्ड राइनोसरस, आर्म्ड राइनोसरस की तरफ आते हो, और दी हार्किन टाइगर या हार्किन टाइगर की तरह आते हो. टेक एनी शेप बट दैट. कोई भी शेप ले लो सिवाय ये घोस्ट का शेप. किसी भी तरह से आओगे ना तो मैं तुम्हारा सामना कर सकता हूँ. इस शेप से हट जाओ प्लीज़, हट जाओ प्लीज़. ऐसे मत आओ मेरे सामने. जो बैंक को खून से लथपथ है उसको बोल रहा है. एंड माई फर्म नर्व्स शैल नेवर ट्रेम्बल. तुम अगर मेरे सामने राइनोसरस, बेयर, टाइगर किसी भी फॉर्म में आते हो, मुझे डर नहीं लगेगा. मुझे मेरा एक इतना सा भी नर्व नहीं ट्रेम्बल होगा. और बी अलाइव अगेन एंड डेयर मी टू द डेजर्ट विद दाई स्वॉर्ड. या तो तुम फिर जिंदा होके आ जाओ और मुझे किसी भी डेजर्ट में ले जाके मुझसे फाइट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसे मत आओ प्लीज़, ऐसे मेरे सामने मत आओ, ऐसे मत खड़े रहो. If trembling I inhibit, then protest me, the baby of a girl. और अगर उस समय मैं तुम्हारे से लड़ते समय हल्का सा भी ट्रेम्बल करूं, तब तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो दैट आई एम द डॉल ऑफ अ बेबी गर्ल. मतलब मैं इतना वीक हूँ, एक तो गर्ल, ऊपर से बेबी गर्ल, मैं उसकी डॉल हूँ. तो मेरा ये कह के मजाक उड़ा लेना, लेकिन प्लीज़ ऐसे शेप में मत आओ. Hence horrible shadow, unreal mockery, hence so go away, horrible apparition. यहाँ से जाओ तुम, illusion हो, तुम real नहीं हो, you just go away. Ghost disappears, ghost चला जाता है. Why so? Being gone, I am a man again. ओह चलो तुम चले गए, अब मैं वापस से नॉर्मल हो गया हूँ, वापस से I am a man. Pray you sit still. अब फिर नॉर्मल सबसे बोल रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए. लेडी मैकबेथ, हाँ, यू हैव डिस्प्लेस्ड द mirth, यू हैव जस्ट डिस्टरप्टेड द हैप्पीनेस. सारा फन, सारा मज़ा खिरखिरा कर दिया तुमने. ब्रोक द गुड मीटिंग, यू हैव सिंपली स्पॉइल्ड द मीटिंग. पूरी मीटिंग बर्बाद कर दी. विथ मोस्ट एडमायर्ड डिसऑर्डर, विथ फिट्स ऑफ योर मैडनेस. पागलपन के फिट से आपने पूरी मीटिंग, पूरी सभा, पूरी इवनिंग बर्बाद कर दी है. मैकबेथ, कैन सच थिंग्स बी एंड ओवरकम अस लाइक समर क्लाउड. सो एक्चुअली में मैकबेथ जो है यहाँ पे घोस्ट को समर क्लाउड से कंपेयर कर रहा है. जैसे समर क्लाउड्स हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, वो परमानेंट नहीं रहते हैं. 10 मिनट आएंगे, थोड़ी देर कवर करेंगे, फिर चले जाते हैं. तो वही पूछ रहा है, क्या घोस्ट भी ऐसे होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं और चले जाते हैं. You make me strange even to the disposition that I owe, when now I think you can behold such sights and keep the natural rubby of your cheeks when mine is blanched with fear.
सो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि यार तुम तो मुझे मेरे नेचुरल जो मेरा नेचर है उससे ही चेंज कर रही हो, मेरा नेचर ही तुम अजीब कर दे रही हो। ये बताओ। अच्छा, मैकबेथ को ये नहीं पता है कि जो घोस्ट है वो सिर्फ वो देख पा रहा है, उसको लग रहा है कि लेडी मैकबेथ भी वो देख पा रही है। तो वही वो कह रहा है कि यार मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि तुम कैसे उस घोस्ट को देखने के बाद भी तुम्हारा जो नेचुरल कलर है, नेचुरल रबी है, वो चेंज नहीं हो रहा है। मैं तो जैसे ही देख रहा हूँ मेरा तो सब पेल हो गया है, मैं ब्लैंच्ड हो गया हूँ, मैं तो पीला पड़ गया हूँ उस घोस्ट को देख के, मुझे इतना डर लग गया है। तुम्हें कुछ अफेक्ट क्यों नहीं हुआ? रॉस, व्हाट साइड्स माय लॉर्ड? कैसे साइड्स की बात आप कर? लेडी मैकबेथ, आई प्रे यू स्पीक नॉट, ही ग्रोज वर्स एंड वर्स। प्लीज़ प्लीज़ आप कुछ पूछिए नहीं। वो अगेन कवर अप कर रही है मैकबेथ को, लाइक शी इज़ गिविंग अ कवर अप कि भैया बस अब और ज़्यादा अभी कुछ इसने बोल दिया तो पूरा पोल ही खोल देंगे ये तो प्लीज़ प्लीज़ रॉस से वो कह रही है आप प्लीज़ प्लीज़ कुछ पूछिए नहीं। क्वेश्चंस enrages him, अगर आप इस फिट में इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे ना तो ये और ज़्यादा फ्यूरियस हो जाएंगे, और ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। एट वंस गुड नाइट, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ प्लीज़ इमीडिएटली सब लोग गुड नाइट, आप लोग जाइए। स्टैंड नॉट अपॉन द ऑर्डर ऑफ योर गोइंग बट गो एट वंस। सी, और जनरली रैंक्स के हिसाब से लोग आते जाते थे, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग रैंक्स के चक्कर में मत पड़िए, सब उठिए और बस निकलिए, सब लोग साथ में यहाँ पे निकलिए। लेनॉक्स, गुड नाइट एंड बेटर हेल्थ अटेंड हिज मेजेस्टी, मे यू हैव गुड नाइट एंड मे यू हैव गुड हेल्थ माई लॉर्ड। लेडी मैकबेथ, अ काइंड नाइट टू ऑल, प्लीज़ सब लोग के लिए मे यू हैव ऑल अ काइंड नाइट। एक्सवेंट ऑल एक्सेप्ट मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, सब लोग चले गए हैं, अब मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ यहाँ पे बात कर। मैकबेथ, इट विल हैव ब्लड, दे से ब्लड विल हैव ब्लड। सो यहाँ पे वो बैंको को रेफर कर रहा है, वो कह रहा है कि कहते हैं खून का बदला खून लेते हैं, बैंको यहाँ पे मेरा खून करने आ रहा है, वो खून का बदला खून लेना चाहता है। स्टोन्स हैव बीन नोन टू मूव एंड ट्रीज टू स्पीक, देखो मर्डर्स कभी भी छुप नहीं सकते हैं, लेटर और सूनर ये रिवील हो ही जाता है कि मर्डर हुआ है, चाहे वो स्टोन्स बोल दें चाहे वो ट्रीज बोल दें। ऑगरर्स एंड अंडरस्टूड रिलेशंस हैव बाय मैकगॉट पाइस एंड कोक्स एंड रूक्स ब्रॉट फॉर द सीक्रेट मैंस ऑफ ब्लड। सी, ऑगरर्स जो होते हैं ये भी एक तरह के सूटसेयर्स होते हैं जो कि थोड़े से वियर्ड टाइप्स होते हैं, मतलब ब्लैक मैजिक टाइप से थोड़ा सा इन्वॉल्व करते हैं। सो ऑगरर्स, दोज पीपल हु हैव अंडरस्टूड द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, उन्होंने सीक्रेट ऑफ मर्डर्स को डिस्कवर किया है। कैसे? बाय दीज मैकपाइप्स एंड ये जो रूक्स हैं, ये सारी बर्ड्स होती हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट बर्ड्स, तो उनके थ्रू मर्डर्स रिवील हुआ है, मतलब उनके थ्रू पता कर लिया है। तो मर्डर तो कभी छुप ही नहीं सकता है, स्टोन्स बोल देंगे, ट्रीज बोल देंगे, बर्ड्स के थ्रू लोग पता लगा लेते हैं, लोग मर्डर को पता तो लगा ही लेते हैं। द सीक्रेट ऑफ मैंस ब्लड, सो दे हैव एक्चुअली एक्सपोज्ड दी हिडन मर्डर्स, दी कंसील्ड मर्डर्स। तो मर्डर्स आप कभी नहीं छुपा सकते हो। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द नाइट, व्हाट इज द टाइम ऑफ द नाइट? लेडी मैकबेथ, ऑलमोस्ट एट ऑड्स विथ मॉर्निंग, विच इज विच? सो ऑलमोस्ट ऑड्स विथ मॉर्निंग है, समझ में नहीं आ रहा है, मॉर्निंग से वो थोड़ा सा मिक्स हो चुकी है। सो विच इज़ विच, रात है या सुबह है? इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्चुअली प्रिडिक्ट कि है क्या टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं समझ में आ रहा है। मैकबेथ, हाउ सेज दाउ दैट मैकडफ डिनाइज हिज पर्सन एट अ ग्रेट बिडिंग? सो व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि जो मैकडफ है उस रिफ्यूज़ कर दिया, हमारे रॉयल ऑर्डर्स के ऊपर वो नहीं आया, मैंने रॉयल ऑर्डर्स दिए थे उसके बाद भी वो नहीं आया। लेडी मैकबेथ, डिड यू सेंड टू हिम सर, डिड यू इन्वाइट हिम, आपने उसको पर्सनली इन्वाइट किया था क्या, क्या आपने कुछ ऑर्डर्स अलग से भेजे थे? मैकबेथ, आई हियर इट बाय द वे बट आई विल सेंड, देयर इज नॉट वन ऑफ देम बट इन हिज हाउस आई केप्ट अ सर्वेंट फीड। सी, यहाँ पे मैकबेथ कह रहा है कि एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके पीछे मैंने पेड स्पाइड ना लगाए हूँ, मैंने हर बंदे के पीछे जासूस लगाए हैं। मुझे डायरेक्टली तो नहीं पता चला लेकिन उन जासूसों के थ्रू पता चला है कि मैकडफ ने डिनाई किया है कि मैं नहीं जाऊँगा भले ही रॉयल ऑर्डर्स क्यों ना हो। आई विल नॉट गो, आई विल टुमारो एंड बिटाइम्स आई विल टू द वियर्ड सिस्टर्स। अभी मैं कल बिफोर अर्ली इन द मॉर्निंग मैं कल जाऊँगा, मैं जाऊँगा और किसके पास जाऊँगा? 3 विचेस के पास। क्यों जाऊँगा? मोर शैल दे स्पीक एंड नाउ आई बेंट टू नो, आई शैल वॉन्ट टू नो, और मेरे बारे में क्या है, क्या वो मेरे बारे में और प्रिडिक्शंस देती हैं, मैं उसके लिए मैं उन 3 विचेस से मिलने तो ज़रूर जाऊँगा। बाय द वर्स्ट मीन्स द वर्स्ट, भले कितना बुरा से बुरा क्यों ना हो, कितना बुरा से बुरा प्रिडिक्शन मेरे लिए क्यों ना स्टोर्ड हो, मैं जाऊँगा और मैं पता करूँगा। वर्स्ट प्रिडिक्शन भी मेरे लिए क्या है मैं पता करके आऊँगा। फॉर माई ओन गुड
all cause shall give way for my own good, all other problems जो भी हैं वो उनको वेट करना पड़ेगा. अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ weird sisters हैं, मुझे उनसे सबसे पहले मिलना है. I am in blood stepped in so far that should I wait no more, returning where as tedious as go over strange things I have in head. So basically क्या बोल रहा है कि मैं, कहते नहीं है आप कई बार लाइफ में इतनी आगे कदम बढ़ा चुके होते हैं कि पीछे मुड़ना पॉसिबल नहीं है. वही कंडीशन इस समय मैकबेथ की है. वो कह रहा है कि मैंने इतने मर्डर्स कर लिए हैं, डंकन का मर्डर कर लिया, देन मैंने बैंको का मर्डर कर दिया, तो मैं लाइफ में इतना आगे आ चुका हूँ मर्डर्स में कि वापस जाना पॉसिबल नहीं है. मुझे इसी में ही अब आगे और स्टेप्स लेने पड़ेंगे. ईवल में ही मुझे अब आगे बढ़ना पड़ेगा. रिटर्निंग वर्ड एज टीडियस एज गो ओवर. वापस आना उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना आगे बढ़ना होता है. तो इट्स बेटर मैं आगे बढ़ूँ, वापस जाने से कोई मतलब नहीं है. स्ट्रेंज थिंग्स आई हैव इन हेड. आई हैव स्ट्रेंज थिंग्स गोइंग ऑन इन माई हेड. मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रेंज थाट्स आ रहे हैं. दे विल टू हैंड दैट नीड टू बी फिगर्ड आउट. मुझे फिगर आउट करना है क्या चीज़ें चल रही हैं. विच मस्ट बी एक्टेड और मतलब बिफोर दे मे बी स्कैन, विच मस्ट बी डन क्विकली. बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, मुझे उनको बहुत ही जल्दी से जल्दी क्विकली एग्जीक्यूट करना है बिफोर अदर्स लुक एट देम क्लोजली. जल्दी जल्दी मैं कर लूँ ताकि लोग उस पर ऑब्जर्व ना करें. पता चला मैंने एक का खून किया, अब किसी और को उसके बारे में पता है तो उन सबको मुझे जल्दी से जल्दी मरवाना है. कहीं उन लोगों ने डिस्क्लोज़ कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है ना, मुझे उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना है. लेडी मैकबेथ, यू लैक द सीजन ऑफ ऑल नेचर्स. स्लीप. भैया आपका दिमाग हो रहा है ख़राब, चलो पहले चल के सो लेते हैं. कहते नहीं है जब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं तो स्लीप इज़ दी ओनली थिंग विच कैन एक्चुअली क्योर यू. तो चलो चल के सो जाते हैं, वरना तुम्हारा हो रहा है दिमाग ख़राब, चल के थोड़ी देर सो लो. मैकबेथ, कम व्हील टू स्लीप. चलो ठीक है हम लोग चल के सोते हैं. माई स्ट्रेंज एंड सेल्फ अब्यूज़ इज़ द इनिशिएट फियर दैट वॉन्ट्स हार्ड यूज़. वी आर येट बट यंग इन डीड. सी, जो मेरे अंदर जो इतने ज़्यादा स्ट्रेंज डिल्यूजन्स हो रहे हैं, इतने ज़्यादा ख्यालात आ रहे हैं, ये मेरे ही डीड्स की वजह से आ रहे हैं. एक्चुअली में क्या है, जो लोग इसके हैबिचुअल होते हैं, जो लोग इस तरह की डीड्स करते रहते हैं, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम लोग अभी भी इस डीड में, मर्डर की डीड्स में बिल्कुल यंग हैं, बिल्कुल न्यू हैं. तो दिस इज़ द रीज़न वाई हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं. मतलब आई एम एक्चुअली टू यंग टू किल. मतलब मैकबेथ कह रहा है कि मैं अभी बहुत न्यू हूँ इन द प्रोसेस ऑफ किलिंग एंड ऑल. अभी मैंने सिर्फ डंकन को मारा है, सिर्फ बैंको को मारा है, ज़्यादा लोगों को तो मारा नहीं है. मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो मैं इसलिए इतनी जल्दी जल्दी परेशान हो जाता हूँ. थोड़ा सा मैं यूज टू हो जाऊँगा अगर मैं मर्डर्स में, तब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो. तो यहीं पे ख़त्म होता है एक्ट 3 सीन 4. आई होप दिस सीन इज़ क्लियर टू यू. इफ़ यू रियली लाइक दिस सीन, please don't forget to like, share and subscribe to this channel. Do leave a comment also in the comments. I am really grateful to all those students who really like, appreciate and give your valuable feedback. I love you all. Keep loving me in this way and I'll definitely try to make more videos for you people. Thank you so much. Bye bye.